So good afternoon, everyone. And I know that you have been in the session for a long time, but the time which is available, I'll try to take up this particular topic, which is on setting question paper. And before that, let me share the presentation with all of you. Quickly, we'll go through what are the major steps involved in setting a question paper and why we all need to look into this aspect. Just over to setting question papers, as we have been discussing in the first session on assessment, that the most dominant way of assessing student performance is written test. And when we talk in terms of written test, these are in terms of class test, which we give mid semester test or the end term test. All are written test, right? And the quality of a written test will depend upon the quality of question paper, right? The higher the quality of question paper, the higher will be the validity and reliability of your assessment which you take for the student performance. So at present, the system which is in vogue, the other day we were discussing some of the drawbacks that exist in the question papers or the evaluation or assessment system. And the very first drawback is inadequate coverage of the content. Now, that happens because if we, out of the three topics, if you're setting class test one, it may happen that only two topics are covered by the teacher. The questions pertain to only two topics, not all the three. But then there are instances where external choices are given by, and university also permit external choices to the learner. In that case, a student can learn 50 to 60% of the syllabus and earn as high as 80 to 85% of the marks. These are based upon 5 studies which we have carried out at this institute level. Then stress on testing lower level abilities. That means most of the questions which we pose are only test assessing learning outcomes at remembering and understanding level. So you can see define कर दो, write कर दो, name कर दो, identify कर दो, list कर दो, enlist कर दो, apply कर दो formula and calculate a particular value. That is only at understanding level, right? Compare करा लीजिए, differentiate करा लीजिए. So stress is again on testing lower level abilities, and again we found 80 to 85% of the questions at remembering and understanding level. Only 15 to 20% weightage is given to higher level abilities. ठीक है, तो ये ड्रॉबैक हमारे एग्जिस्ट करता है. एंड समटाइम्स वी आस्क वेरी माइनर क्वेश्चंस. अब जब आप यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पूछ लेते हो, दिस इज अ वेरी माइनर क्वेश्चन विच इज बीइंग पोज्ड. ठीक है, तो ऐसे ही छोटे छोटे सवाल या डिफाइन करना पूछ लिया. इवन दिस इज trivial things which we ask our student, या enlist करा दिया types को. Then there are instances where we incorrectly form the question. पूछना कुछ चाह रहे हैं, लिख कुछ रहे हैं. जैसे one of the examples is write short note. मेरा सवाल रहेगा write short note. क्या लिखूं? मुझे जो आता है मैं लिख दूंगी. आप कैसे देखोगे उसको? सबको मार्किंग करोगे? How will you remain objective? You won't be, because each student is using a different answer. जो आता है वो लिख दो. Then repetition of questions has been found, especially over the years. And students are wise enough. They also look at the previous papers. They also find the trend, which question has been upcoming, and they also prepare accordingly. So repetition in the same question paper has also occurred in some cases. And one of the question paper we found, पहले वो short answer में आया हुआ है question, then it came as a part of restricted essay, ABC part में आ गया, and then essay type question, extended essay question भी है.
So the student has to repeat the answer thrice. तो student ये भी लिख सकता है, please refer to page so and so for the answer to this. लिख सकता है, लिख सकता है, but they'll not do, but they'll repeat. But क्या हम एक ही चीज को 3 बार assess करते हैं? So repetition of questions, instances are there. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, इज नहीं है, आर नहीं है, या इज की जगह आर आ गया, आर की जगह इज आ गया, राइट? एंड माइनर मिस्टेक्स, बट ये कम होती हैं. Irrelevant questions, it happens when the question paper is set by a person who is not teaching the course, or who is from a higher education system and not familiar with the level of the syllabus which has been formed for the diploma level institution, or for the degree level if person from the university who is taking PhD classes or PhD students and so on, more into research. Then inordinately lengthy, it can happen. As a paper setter, we think that 3 hours are good enough for completing. But when students start attempting, there have been complaints that we could not complete the answering the question paper because it was lengthy time. Mark allocation. अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पेपर ऐसे होते हैं जिनमें ABC पार्ट दिया होता है, but it is given 10 marks. So how do a examiner assess that? ए को उसने 3 नंबर देने हैं, बी को 3 देने हैं, या सी को 4 देने हैं, और इट कुड बी 3-4-3, it could be 4-3-3, right? So once the mark distribution is not indicated when the question is divided into parts, again it is a problematic for the examiner, and especially when we look for end term examination where one person is the paper setter, a number of examiners are there, then it can happen. It also happens that a lower level learning outcome आप डिफाइन करा रहे हो, उसको आप ज्यादा नंबर दे देते हो. एक्सप्लेन जब करना है अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसको आप कम नंबर दे देते हो. इट हैपेंस, राइट? और the difficulty level of the question also need to be taken into account. The more difficult question need to be given higher marks as compared to the simple question. So ये जो हमारे, सॉरी, ये तो मुझे लगता है मैं छोड़ दूंगी, आई विल नॉट गो फॉर, बट यू कैन, क्योंकि टाइम अपने पास उतना ही है. सो लेट्स. अब ये भी होता है विच वी हैव टेकन इट कि स्कोर्स नॉट ट्रू इंडिकेटर्स ऑफ द नॉलेज ऑफ द लर्नर. 95-100 नंबर भी आप कह रहे थे कि 100 नंबर लेके आ जाता है, बट द फंडामेंटल नॉलेज इज लैकिंग विद द लर्नर, एंड इट हैपन्स एट एवरी स्टेज. चाहे बच्चा डिप्लोमा में आ रहा है, चाहे वो 9th करके 10th में जा रहा है, चाहे 10th करके 11th में जा रहा है, it is a common complaint with the people who are teaching the learner कि उसको आता कुछ नहीं है. Even people who come to the graduation level, this is a complaint which is odd. Graduation करके masters में आ जाते हैं, then also we have sometimes problems with it, right? So कहने का भाव क्या है कि we are assessing competence which is actually not possessed by the learner. नंबर तो दे देते हैं, पर वो रहता क्या, रटाफिकेशन ही रह गया, आता कुछ नहीं है. Then mass copying, there are some instances ये छोड़ लेते हैं ये. Then subjectivity in scoring, this we have discussed at length on the first day, that inter-rater and intra-rater reliability is low. अब इतनी सारी जब प्रॉब्लम है, इसको छोड़ दो, then ये हम कर चुके हैं. Anybody who can recall the characteristics of good assessment? Transparency, utility, practicality and objectivity. So 6 characteristics आप लोगों ने we discussed. Now we say how to enhance validity, reliability, objectivity as a teacher. What do you do when you set a question paper?
नहीं, मेरा सवाल कुछ और मैं पूछ रही हूँ. What is the procedure you adopt in setting a question paper? कैसे सेट करते हो? सो सिलेबस आप सामने रखते हैं और कुछ? ओके, हाँ जी. ओके, ये तो प्रिंसिपल्स की बात करें. मैंने पूछा आप प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करते? ओके, फिर क्वेश्चन बना देते हैं बस. ओके. Any other method you adopt? This is common way of doing it. How much time do you normally spend on setting a question paper? Yes. कितना टाइम नॉर्मली लगाते हो? 1 to 2 hours. 1 to 2 hours. You are realistic, ma'am. You are sharing the actual information. This is what we normally do. We don't even spend 2 days. होते हैं बीच में भी, there are instances, but normal procedure is क्या है? खुद ही तो पढ़ा रहे हैं, पिछले क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं, किताबों में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, and we just assemble those and prepare the question paper. लेकिन question paper setting is a rigorous task. It requires time and effort. And the very first thing we need to do is list the topic. You have a copy of the syllabus. You'll see the topics which are to be included. And you also become familiar with the learning outcomes that need to be attained by the learner. सो उसका फायदा क्या है कि मैं कुछ जो क्वेश्चंस मैंने क्लास में पूछे थे, जैसे डिफाइन करा लिया, डिस्कस करा लिया, एक्सप्लेन करा लिया, एग्जाम्पल ले ली, दोज लोअर लेवल एबिलिटी which I have already assessed in my formative assessment, I may skip those. I focus on higher level abilities in the question paper. So level of learning outcome will determine the level of competence you actually want to assess. So आपके सामने सारे learning outcomes पड़े हैं. You can prioritize the learning outcome which need to be assessed in a particular test paper or a question paper. For example, this is building construction and estimation. Civil. कोई है civil वाला? नहीं होगा, है नहीं? Okay. Chalo, maybe I have taken an example. So I say, if I am going to set end term examination, all the 11 topics need to be covered. If I'm going to set the class test one, maybe out of 11, I have covered 3 topics. So my question paper class test will be restricted to the first 3 topics and its learning outcomes. When I'm looking at setting an end term examination, I'll take into account the course outcomes which have been set for this particular course. अब देखिए, उसके बाद the second thing is determine the weightages to be assigned to various topic. आपने कहा मैंने 3 टॉपिक करे. नॉर्मली हम क्या करते हैं, 3 टॉपिक ले लेते हैं, 3 क्वेश्चन सेट कर रहे हैं फॉर द क्लास टेस्ट 1. वी गिव इक्वल मार्क्स टू ईच टॉपिक. ये करते हैं ना, 30 नंबर का है, 10 मार्क्स टू ईच टॉपिक. लेकिन those 3 topics may or may not require the same instructional time. हो सकता है टॉपिक 1 8 घंटे ले रहा है, टॉपिक जो 2 है वो 6 घंटे ले रहा है, टॉपिक 3 जो है वो 4 घंटे ले रहा है. सो द टाइम यू हैव स्पेंट varies, but you are giving equal weightage. So what needs to be done? We need to calculate the weightages to be given to various topics. अब देखिए, आप करिकुलम डॉक्यूमेंट उठाते हैं, as you have seen here, hours of teaching have been indicated in the curriculum document. ठीक है ना, 7 घंटे 4 घंटे 4 घंटे. Now when
I'm setting question paper. I have taken 7, 4, and 4. That means I have spent 15 hours in teaching these three topics. And I try to calculate if it is going to be 30 marks, that means 7 divided by 15 multiplied by 30. That will be the weightage of marks given to the topic number 1. So आपका कितना आ गया? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 30 by 15. क्लियर है? So number of hours spent in teaching the first topic divided by the total instructional time multiplied by the marks which you want to set the question paper. Now, this you see 14, 8, and 8. Now you see final weightage. The consideration with the paper setter is to what extent this particular topic is important from the world of work point of view or the real world. जिस टॉपिक में आपको लगता है that is more important as compared to the other one, you can bring in 2 to 3% change in the marks. So here you can see that 14, introduction to building material, marks have been said to be 12. 8 वाले 10 इंक्रीज कर दिए गए, 8 वाले 8 रह गए. So the teacher has the flexibility to bring in some variation as per the importance of the topic in the real world and the world of work. और हमारा ये भी मानना है कि rather than teacher doing it, when a curriculum document is prepared, this kind of table should be available in the curriculum document so that each teacher can use a uniform system of giving marks to the various topics in the class test as well as in the end term examination. और हमारे कुछ curriculum जो निटर ने develop किए हैं, they have started including this weightages to be given to various topics, as well as the next one you will see. This is 11. Now ये आपका end term ये आ गया. Next step क्या है? Preparing a table of specification. अब ये table of specification होता क्या है? Any idea? Any idea? मैंने कहा मैं 12 नंबर दूंगी टॉपिक 1 को, 10 नंबर दूंगी टॉपिक 2 को, 8 number I'll give to topic 3. So what will be the table of specification now? बिल्कुल. So किस लेवल के लर्निंग आउटकम्स को आप इंक्लूड करोगे क्वेश्चन पेपर में? That is a two-way representation of the topic and the level of learning outcomes you will assess through the question paper. तो आप देखिए यहाँ पे remembering, understanding, applying and then higher than applying, right? And 12 आपके total marks थे. Now you are trying to determine that remembering level पे how many marks will be given, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कितने देंगे, एप्लीकेशन पे कितने देंगे या अप्लाइंग पे, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हाउ मच वेटेज विल बी गिवन. एंड दिस विल बी कीपिंग इन व्यू द लर्निंग आउटकम्स यू हैव सेट फॉर टॉपिक 1. इसी तरह टॉपिक 2, इसी तरह टॉपिक 3. What will be the advantage if we prepare table of specification? What will be the advantage? Ji, anybody from online also can answer this question. Ji ma'am, boliye. Huh? It become easier for checking the question. Easier for checking or setting? We are covering all levels. देखो, क्वेश्चन बनाने में हमारी मदद करेगा, बिकॉज मुझे अब पता है कि रिमेम्बरिंग लेवल चेक करना है, अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करना है, अप्लाइंग करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है. और दूसरी चीज उन्होंने कही, इन क्वेश्चन पेपर यू विल हैव कवरेज ऑफ ऑल लेवल्स ऑफ learning outcomes.
जो अभी ड्रॉबैक हम कह रहे हैं 80 to 85% marks are given to remembering and understanding. So if we prepare a table of specification, you can see of 30 marks, 4 marks will be given to remembering, 8 marks will be given to understanding, 8 marks will be given to applying, and 10 marks will be given to problem solving. So you are in a way ensuring the coverage of different levels of ability or different levels of learning outcomes as far as the question paper is concerned. ठीक है, clear हुआ? And this is not every time you have to do. One time exercise at the department level can be done in this. Then the next step is, अब मुझे पता है मैंने कौन कौन से लेवल को असेस करना है. नाउ आई डिसाइड which type of question will be more suitable. आपने देखा, and you yesterday, day before yesterday, you had a detailed discussion with Dr. Sneed on the types of items. So selection type items and supply type items. अब जैसा कि हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था, that you can, if you are going for the application and higher than application, then आपकी essay type questions will be there, है ना? And अगर आप remembering कर रहे हैं, this can be done through true false, this can be done through multiple choice questions, right? Or even the supply type, short answer type questions करने. So a teacher, depending upon what are the rules and regulations of your university or the Board of Technical Education, you take a decision. Which universities allow करती हैं? At the end term examination, 100 mark test is there. 25% will be given to objective, 75% will be given to subjective. Objective 25, subjective question 75. So if that is the pattern, so a teacher needs to take a decision that 25% marks will be given to selection type items, 75 marks will be given to supply type question. ठीक है, clear है. अब next is the question is to write questions on items. Simple. आपने अब क्या करना है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन सामने रखा, आइटम्स आपने देख लिए कि 25 नंबर अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव बनाने हैं तो वो 25 बनाएंगे, and that will be restricted to remembering and understanding. Applying and higher than applying will go to supply type question. ये ध्यान रखना, ठीक है? Understanding can also go to supply type, but 25 में आप applying and higher than applying कम यूज करोगे, right? अब क्वेश्चंस तो हम लिख लेते हैं. आफ्टर यू फाइनलाइज द क्वेश्चन, क्या करते हो आप? एक बार आपने लिख लिया, फिर क्या करते हो? फाइनल हो जाता है, चेक करते हो, खुद रीड करते हो, अनलेस एंड अनटिल यू आर सेटिस्फाइड विद द क्वेश्चन की क्वेश्चन की फ्रेमिंग ठीक है, क्वेश्चन का लेवल ठीक है, बट द क्वेश्चन इज ओके. चलो मैं ये आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, सो दीज आर एग्जाम्पल बिफोर आई स्विच ओवर टू दैट. जैसे आपने कहा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये रिमेम्बरिंग लेवल का क्वेश्चन है. डिफाइन स्टेट सीमेंट रेशियो लॉ. दिस इज नथिंग बट रिमेम्बरिंग रिप्रोडक्शन. चार्ल्स लॉ. लिस्ट द 4 ऑपरेशंस commonly performed by the microprocessor. Just नाम लिखने हैं बच्चे को प्रोसेस ऑपरेशन के, not detailing out. ठीक है? Enlist various types of seeds is again a question at the remembering level. Name various painting processes again. ठीक है? Enumerate any 2 good qualities of timber. तो आप देखिए जो क्वेश्चन डिफाइन से शुरू हो रहा है, स्टेट से शुरू हो रहा है, नेम से शुरू हो रहा है, एनलिस्ट से शुरू हो रहा है, लिस्ट से शुरू हो रहा है, या राइट भी
राइट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ 5G ओवर 4G. ठीक है, टू, सिर्फ दो लिखनी है, वो भी तो एक हो गया. ठीक है, सो दीज आर सैंपल क्वेश्चंस विच कैन बी यूज्ड एट द रिमेम्बरिंग लेवल. अब देखिए, ये डिफाइन हो गया, लिस्ट हो गया, लिस्ट हो गया. ठीक है, ओके. अब देखिए, ये आ गया एक्सप्लेन. मुझे लगता है एक बीच में मिस हो रही है. चलो, एनीवे, एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ मार्केट साइज फॉर अ न्यू वेंचर. एक्सप्लेन, डिफ्रेंशिएट, कंपेयर, ये कौन सा लेवल आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग. सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्वेश्चंस एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल. ये देखिए, डिराइव relationship between voltage and current, derive relationship between stress and strain. ये क्या है? These are at the understanding level. Or ex, explain time lags and flexible accelerator. Explain RTH functionality in drone diploma. It's a high level, not a diploma level question, but still it makes you clear. Differentiate, है ना? Differentiate between petrol and diesel engine. Differentiate between DC and AC machine is nothing but a question at the understanding level. और ये देख लीजिए, this is pertaining to some of our diploma level, degree level. Derive the relationship between static and stagnation temperature. Heat addition to a gas may cool the gas. Explain with the help of proper HS diagram. Explain the RAM effect. इसको डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉर्मल एंड ऑब्लिक शॉक्स, ये मैं ही करेक्ट कर देती हूँ, गलत है. एक्सप्लेन द डिफरेंस, सिंपली लिखो डिफ्रेंशिएट बिटवीन. और यू कैन से स्टेट एनी थ्री डिफरेंसेस बिटवीन दिस एंड दिस. ठीक है ना, वेरी स्पेसिफिक. अब एक्सप्लेन एनी थ्री एप्लीकेशंस ऑफ जेट प्रोपल्शन, राइट. एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ रॉकेट्स. देन यू कैन सी, क्या हो गया इसको, क्या हो गया, अब इसको क्या हुआ. हाँ जी, एक्सप्लेन ये हो गया, मुझे लगता है रिपीट हो गई है वही चीजें. ओके, हाँ जी. अब देखिए अप्लाइंग लेवल. तो मैंने क्या बोला था, लर्निंग आउटकम एट द अप्लाइंग लेवल क्या होता है? when the person is able to apply the learned knowledge in a new situation, in a new situation. So the examples you have covered, the numericals you have covered in the class, they are not the ones. Now the situation must differ, right? And you can see here that certain real hypothetical examples have been taken where the person is required to identify or explain the functionality or calculate. So calculate karna, determine karna, find karna, apply karna, those questions which are of numerical nature, which relate to real life situation or the world of work, they come under the level of. Or if you are taking a case study in your question paper, then case study would also involve application of the learned knowledge in finding solution to the problem enlisted in the case, or applying the learned theory or principles to the situation which has been given in the case and solving the or resolving an issue or solving the problem. अब देखिए, सिंपल रीड कर लीजिए. दिस इज एट डिग्री लेवल द क्वेश्चन वाज इंट्रोड्यूस्ड. Very simple. A ball dropped from 5 meters above a flat surface. Each time the ball hits the surface after falling a distance h, it rebounds the distance rh. What will be the distance the ball travels in each of the following cases? And the figure is given. So the person needs to apply. इसी तरह देखिए, single array is used to implement two stacks. So the two stacks are from opposite ends of the array. What is the condition for stack full if the space is to be used efficiently? तो ये शेड्यूलिंग ऑफ टास्क पे आप देख सकते हैं, टास्क है. अब ये क्वेश्चंस हैं which comes with identification of reasons, causes, है ना, analysis. So आप देखिए, explain the reason for transmission losses.
अगर मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देती हूँ तो ये क्वेश्चन किस लेवल का है? बोलिए. अगर मैं ये कहती हूँ एक्सप्लेन द रीजंस फॉर ट्रांसमिशन लॉसेस, understanding, because the teacher has explained, it is already available in the books, the student need not analyze anything. एनालिसिस तब होगा आप अगर लोकेलिटी की डिस्क्रिप्शन देंगे या बच्चे को एक लोकेलिटी में ले जाएंगे एंड देन ही हैज टू आइडेंटिफाई, देन इट इज ब्रेकिंग डाउन द होल एंड आइडेंटिफाइंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और पार्ट्स. लोकेट, आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है in a particular language or there is algorithm available, so locate the fault in that algorithm. कहाँ पे गलती की है? It requires ability to analyze the reasons. Now again, आपका earthquake है, electricity जाना है, आपका maybe the aircraft crash, air crash है ना? There are a number of things where, or the failure of shaft as we have seen the cases. Now, those questions can be taken as a part of your question paper and they will require the student to analyze the causes. Okay? So, then you can see evaluating level. Evaluating is where you have more than two material, two theories which are applicable, two techniques which can be used in a given situation, and the student is asked to take a decision after evaluating the pros and cons of two materials, two theories, two principles, two techniques, etc. ठीक है? जैसे हम कहते हैं कि आप गियर बॉक्स बना रहे हो, तो मैं कहती हूँ आप आयरन का बनाओगे, आप एलॉय का बनाओगे, आप एल्यूमिनियम का बनाओगे, किसका बनाओगे? So the person has to take a decision given a vehicle specification, which material will be more durable, which is more appropriate for designing the gearbox. तो बहुत सारे डिसीजन लेने हैं. So that question will be at the evaluating level. नहीं बोलो, क्वेश्चन बताओ. क्वेश्चन है कि इसमें रिएक्शन हुआ है, तो प्रोडक्ट बन रहा है, रीजन देना है कौन सा मेजर है कौन सा माइनर. हाँ, identify the major and minor and product. This would require analysis. Analysis, not evaluation. Analysis. So you can see the questions and then creating level pe where the person needs to design, where the person needs to formulate a plan, the person needs to write a program. अब देखिए, write a program, not that you have asked him to write a program, but he has to seek the customer requirement, then accordingly maybe he has to write a program. Okay? Formulate a 5-year. So this requires creating. That means whatever knowledge he has acquired up to evaluating, he is now synthesizing and creating something new. Just few examples of the questions. अब ये questions हैं at different level design के. अब question है, आपने question लिख लिए, you are satisfied, है ना? You have edited the question. Give it for review to one of your colleagues. अपना एक colleague जिस पे आपको trust है, you can share your question paper that person and seek the feedback. According to his feedback, you can improve upon, right? Or if there is any committee constituted at the department level, maybe there are 2 senior members who go through your question paper, provide you the feedback, or does the moderation, right? So they can do it. And then finally, assemble the test. अब आपने क्वेश्चन तो बना लिए, क्वेश्चन पेपर के पार्ट्स कौन से होते हैं? इफ यू लुक एट द क्वेश्चन पेपर, सबसे बिगिनिंग में क्या दिया होता है? सबसे ऊपर इंस्ट्रक्शन है, उससे ऊपर भी कुछ है. राइट. सबसे ऊपर हमारा क्या होता है? जनरल इंफॉर्मेशन, फॉलोड बाय इंस्ट्रक्शंस, followed by the questions and items,
along with the question and items is the mark distribution. यही होता है चार. Now look at कि general information जो है वो name of the college, branch, year, semester, course code normally available होता है, लेकिन क्लास टेस्ट उसमें दिया ही नहीं होता कुछ भी, सीधा शुरू हो जाता है क्वेश्चन से कई बार. rather than writing the name of the course भी नहीं देते हैं, because the teacher is going to distribute it in the class. So sometimes it happens that this information is missed, but the paper should include all this. अभी आप यूनिवर्सिटी के पेपर देखेंगे, बोर्ड के पेपर देखेंगे, so board or university name is missing from the paper. Maybe they say it is for the confidentiality purpose. But my question is, if I get a paper, how do I make sure that it belongs to Rajasthan University, or it belongs to Punjab University, or it belongs to Haryana University? So some mark has to be there as far as college. Agar internal autonomous hai, तो college name appears on that. If it's a board or the university, that board or the university name appears on that. And ये जरूरी है, because sometimes it happens कि गलत पेपर खुल जाता है. Say for example, the SOIM course code, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए कॉमन पेपर है, तो उसका कोड तो सेम रहेगा. सो इट हैपन्स, अगर आप कोड मिस करते हैं, पेपर का नाम देते हैं, वेदर विच पर्टिकुलर ब्रांच यू आर रेफरिंग टू, गलती होने के चांसेस हैं, राइट. देन इंस्ट्रक्शंस. अब देखिए इंस्ट्रक्शंस जो है दे नीड टू बी ब्रीफ, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, एंड दे नीड टू बी करेक्ट, सिंपल. एंड अगर आपने क्वेश्चन पेपर को यू हैव डिवाइडेड इनटू ABCD, या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, या पार्ट ABCD, या सेक्शन 1, 2, 3 आपने करा है, या यूनिट 1, 2, 3 करा है, तो देन अगर आपकी इंस्ट्रक्शंस वेरी करती हैं from one section to another, then it is always desirable that instructions are given in the beginning of the section. जैसे मैं कहती हूँ, all question in section 1 are compulsory. Second question में attempt any 2 questions out of the 3. वेरी कर रहा है ना, तो तब मैं section wise दे दूंगी. Otherwise, general instructions in the beginning of the question paper are normally given. ठीक है. अब देखिए, मैं आऊंगी आपके क्वेश्चन पेपर पे. अभी क्वेश्चंस एंड आइटम्स, दीज आर, मैं बहुत तेज चल रही हूँ आज, बट फॉरगिव मी दैट. ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन जो हम बनाते हैं, गाइडलाइंस हैव बीन डिस्कस्ड बाय डॉक्टर स्नीप. सो दोज गाइडलाइंस आर टू बी केप्ट इन माइंड while writing a true false, while writing a short answer, while writing a restricted essay or extended essay question, or drafting a multiple choice question. तो वो guidelines तो हमेशा ध्यान में रखेंगे, but make sure that you are keeping the questions relevant. It measures a significant learning outcome. तो तभी learning outcome का फायदा ना, या कोर्स आउटकम, उसको प्रायोरिटाइज कीजिए कि क्या चीज है जो आप असेस करना चाह रहे हैं. एंड दीज क्वेश्चंस नीड टू बी प्रॉपरली सीक्वेंस्ड. प्रॉपरली सीक्वेंस्ड का क्या मतलब, क्या मतलब है? नॉर्मली जो हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो कैसे अरेंज किए होते हैं, यूनिट वाइज. सो यूनिट वाइज ऑल्सो, एंड विद इन द यूनिट टॉपिक वाइज. यूनिट में टॉपिक जो पहले आता है वो क्वेश्चन पहले आएगा, फिर दूसरा आएगा. इसी तरह अगर हम वैसे पेपर सेट करते हैं तो इट इज ऑलवेज दैट वी स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक 1 एंड गो टू द लास्ट टॉपिक. इट कैन ऑल्सो हैपन दैट व्हाइल अरेंजिंग, सीक्वेंसिंग द क्वेश्चंस, you make sure that simple question comes in the beginning, difficult question come at the end. क्यों? To motivate the learner. नहीं तो क्या होता है, अगर पहला ही सवाल बहुत मुश्किल है, गए भाई आज तो कुछ नहीं होगा, पास भी नहीं होंगे, मोरल डाउन हो जाएगा, and you will, the learner is not able to cope up with the requirement. आता जाता सब भूल जाता है जब.
है ना. सो मेक श्योर कि इजी सिंपल क्वेश्चन जो है वो पहले दिया जाए, डिफिकल्ट बाद में आए, राइट. विद इन द यूनिट्स यू कैन डू दैट. अब नेक्स्ट पार्ट इज द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन. एज आई सेड, लेवल ऑफ लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखते हुए आप मार्क एलोकेट करें. अगर लोअर लेवल लर्निंग आउटकम है, कम मार्क्स. जैसे जैसे हायर लेवल पे जाओगे, ज्यादा मार्क्स. द इजी क्वेश्चन लेस मार्क्स, द डिफिकल्ट क्वेश्चन मोर मार्क्स, है ना. द सिंपल क्वेश्चन लेस मार्क्स, द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मोर मार्क्स, है ना. सेकेंड थिंग इज दैट whatever parts are there, ABC, always try to specify how many marks are for part A, part B, part C. ठीक है. अगर मैं कहती हूँ मेरे पास 3 मार्क्स हैं, मैंने क्वेश्चन ही फ्रेम ऐसे किया है, एनलिस्ट एनी 3 प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कुछ भी. ठीक है. तो मैंने 3 रखा है, इसका मतलब क्या है, 1 मार्क ईच आई एम गोइंग टू एलोकेट टू द केमिकल प्रॉपर्टी, राइट. देन हायर, ये आपको मैंने बता दिया, हायर एबिलिटी, डिफिकल्ट क्वेश्चन, मार्किंग स्कीम. एक ये मेरी ड्यूटी बनती है, इफ आई एम द पेपर सेटर फॉर द एंड टर्म एग्जामिनेशन, देन आई मस्ट प्रिपेयर अ मार्किंग स्कीम. क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया होगा और किस चीज को आपने कितने नंबर देने हैं. एज वी डिस्कस द अदर डे, numerical, if it is going to be stepwise marking, then how many marks are to be allocated to each step? And if there are more than one method of solving the numerical, both the methods are to be taken into consideration. क्योंकि एक स्टूडेंट कोई भी मेथड यूज कर सकता है. सो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या मेथड्स हो सकते हैं, a paper setter needs to prepare the marking distribution along with. This is broadly the guideline. अब मैं आती हूँ आपका जो पेपर तनु ने मुझे भेजा था, एंड फ्यू पेपर्स विच आई डाउनलोडेड फ्रॉम द साइट. ठीक है. तो मैं उस पे आती हूँ. लेट मी गो टू दिस वन क्विकली. विल हैव दिस अप्लाइड केमिस्ट्री का इन्होंने मुझे पेपर भेजा था. सो दिस वाज द पेपर. आई होप इट इज विजिबल टू ऑल. अब देखिए, पहले ऊपर ही देखिए, बिकॉज दिस इज अ क्लास टेस्ट. क्लास टेस्ट है जी, तो कुछ भी ऊपर नहीं है बोर्ड, कोई इंफॉर्मेशन नहीं एक्सेप्ट द नेम ऑफ द पेपर, द कोड, द टाइम एंड द मैक्सिमम. कौन सा कोड का है वो कॉन्फिडेंशियल पर्पसेस के लिए शायद उड़ा दिया गया है नहीं. चलो अब आते हैं कोई आपका अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन. आई एम वेरी हैप्पी. नो एक्सटर्नल चॉइस इज गिवन टू द लर्नर. सारे क्वेश्चन करने हैं, रेलेवेंट है ना. अब दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है. स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डेटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन. मैं तो हिंदी मीडियम की हूं, अब मुझे क्यों अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, बताओ. जरूरी है? Why can't I, as a paper setter, ensure the accuracy and correctness of data in both Hindi and English? There has not to be any variation. अगर मैं हिंदी मीडियम की हूं और आपने एक डेटा दे दिया है and I have attempted the numerical, you cannot punish me on account of not looking at English medium version. जब आपने ही तो दिया हुआ डेटा, तो क्या मैं इंग्लिश का भी क्वेश्चन पेपर पढ़ूंगी बिफोर आई अटेम्प्ट? मुझे आज तक समझ नहीं आई. दिस इज कमिंग इन ऑल क्वेश्चन पेपर्स ऑफ यूपी. नो, आई थिंक एज टीचर्स you are also part and parcel of the system. Bring this change कि ये क्लॉज रिडंडेंट है. फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ? हिंदी इंग्लिश. जब मैंने इंग्लिश ऑप्ट किया, आई विल सी द इंग्लिश क्वेश्चन पेपर. अ पर्सन वाज ऑप्टेड फॉर हिंदी विल लुक एट द हिंदी वर्जन. वी शुड ट्रीट देम एट पार्ट, राइट. अब तीसरा पढ़ो, तीसरी पढ़ो आप अपनी इंस्ट्रक्शन.
use of pagers and mobile phone by the student is not allowed. अब देखो, ये तो एग्जामिनेशन हॉल में ही अलाउड नहीं होना चाहिए. पेपर को क्वेश्चन पेपर पे लिख के क्या करोगे? That should be a common instruction to the learner. Pages and mobile phones are not allowed in the examination hall. At the entry only you check and keep these things outside. नहीं रहना चाहिए, इस ये होना नहीं चाहिए. इट इज रिडंडेंट अगेन. मतलब यहाँ पे तो मैं अप्लाई नहीं करूंगी उसको. पेपर क्वेश्चन पेपर में थोड़ी अप्लाई करूंगी. अब आते हैं असली मुद्दे पे. द क्वेश्चंस यू फ्रेम, आंसर एनी 10 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग. तो देखो ऊपर क्या लिखा था, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस. अब स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इज आउट ऑफ द 12 देयर इज अ चॉइस ऑफ 2, राइट. अब देखिए, अब मैंने ये लिखा है इनका यहाँ पे, ये देखो, हाउ मेनी प्रिंसिपल्स, 1 मार्क क्वेश्चन, राइट पॉल्स एक्सक्लूशन प्रिंसिपल्स. और या एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या होता है भाई? छोटी सी गलती है पर है, ठीक है. अब देखिए, एक्सप्लेन हंट्स रूल विद एन एग्जाम्पल. क्वेश्चन कितने मार्क का? 1. ये कम नहीं है नंबर. रूल भी दे रहा है, एग्जाम्पल भी दे रहा है, एटलीस्ट 2 मार्क्स चाहिए थे, मुझे लगा. अच्छा, देन सी का आप देखिए, बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड which is weaker and why. Question framing is wrong. Which of the two bonds, which is a weaker bond? अब ये देखो, which is a weaker bond between this and explain the reasons or why. ठीक है. अब ऐसे ही आप देखते जाओ, बाकी क्वेश्चन ठीक है. अब देखिए, क्वेश्चन आता है एट एफ. अब ये क्वेश्चन गलत है. देखो, when you ask what is de-vexing, I can write the meaning, I can write the purpose, I can write the process. आप क्या चाहते हो? हाँ जी, नहीं, हाँ, आप क्या चाहते हो मीन्स you want the student to define de-vexing, you want the student to write in one word or one sentence the purpose of de-vexing. So why can't it be a direct question, define de-vexing, state the purpose of de-vexing. सोचिएगा, from this learner's point of view वो वेग हो जाता है. Then comes, अगर आप देखिए, फिर तो ये fill in the blanks आ गए हैं. Then बाकी ठीक है, ठीक है. राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ, कुछ लिखा हुआ है, पढ़ा नहीं जा रहा. ओके, अब देखो, अब यहां पे आती हूँ. ये देखो, 2C, डज फॉस्फोरस शो वेरिएबल वैलेंसी. अब मुझे कोई पूछे डज इट शो, मेरा आंसर क्या होगा? यस और नो, है ना. तो आपने क्या लिखा है? एक्सप्लेन विद रीजन. फिर बीच में आ गए हो, इफ यस वाई, इफ नो. दोनों हो सकते हैं ना. बच्चा जितनी देर तक श्योर नहीं होगा, और सिंपली लिखिए, या इस क्वेश्चन को आप रीफ्रेम कर सकते थे, होता है या नहीं होता? यस है आंसर ना. एक्सप्लेन द रीजंस फॉर वेरिएबल फ्लुएंसी ऑफ दिस. मेक इट स्पेसिफिक, राइट. एंड देन ई देखिए, ई क्वेश्चन को आप चेक करेंगे. यहाँ पे ई देखिए आप, डी ई वो गलत आ गया, सी आ गया. राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड lubricant. देयर आर 2 मार्क्स. हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर? हाँ जी, बहुत से. कैन आई रिस्ट्रिक्ट टू enlist any 4 characteristics and I give half mark to? जो 4 आते हैं वो लिख दो. चॉइस भी है, नो टेस्ट भी हो गया. बच्चे अकॉर्डिंग टू द नॉलेज दे विल राइट डिफरेंट 4, को नो इशू. ठीक है. अब देखिए, व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल?
फिर वही व्हाट आ गया, डिफाइन कर सकते हैं, स्टेट कर सकते हैं, ठीक है। देन आगे ओ ओके, ये देखिए, ये अब ये देखिए, वाटर प्राइमरी, फिर वही आ गया, वाटर प्रिंटिंग एंड फोमिंग, नहीं प्रिंटिंग एंड फोमिंग लिखा हुआ है भाई, प्राइमिंग है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, वाटर प्राइमिंग एंड फोमिंग। तो फिर अगेन व्हाट, आप इसमें मीनिंग पूछ रहे हो, एक्सप्लेन पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो, नहीं क्लियर हो रहा। राइट द डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइमिंग एंड फोमिंग, कितनी, वो नहीं है, 5 नंबर का है। तो क्या मैं फिर देखो, सेक्शन वाइज मार्किंग इज नॉट गिवन, चेक करिए, सेक्शन वाइज मार्किंग इज नॉट गिवन। आप दो पूछ रही हो चीजों, तो दो को डिवाइड होना चाहिए था, वेदर इज 2 and 3, 3 and 2 क्या है, या 2.5, 2.5 यू आर गिविंग टू, मेक श्योर, ठीक है। अब आगे आ जाओ, आगे आते हैं। फिर देखिए कितने क्वेश्चन हैं जो व्हाट से ही शुरू हो रहे हैं, व्हाट इज, थिंक ऑफ चेंजिंग दिस, अवॉइड व्हाट आर, अब व्हाट आर बफर सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसको डिफाइन कराना है, क्या कराना है वो क्लियर कर लो, ठीक। देन ये तो ठीक है आपका, यहाँ पे फिर गलत हो गया कुछ। अब देखिए यहाँ पे आ गया वाटर बायोग्रेडेबल पॉलीमर्स, फिर यहाँ पे क्या लेना है, सो अगेन, हाँ क्या, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, कर सकते हो, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस विथ 2 एग्जाम्पल्स, कर दो, ठीक। डिफ्रेंशिएट बिटवीन हो गया, ठीक है। अब ये छोटा सा क्वेश्चन पेपर है अपना, पर उसमें भी हम कुछ कुछ निकाल रहे हैं। सो कहने का भाव है कि गलतियां हम सब करते हैं, तो गलतियों को अवॉइड करना है। नाउ दिस इज अ पेपर अगेन, वो 3 स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन चल रही हैं, है ना, बोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी, चेंज इट। अब इसमें मुझे अप्लाइड फिजिक्स में यहाँ पे सारा राइट राइट। अब एक चीज और बोलना चाहूंगी, द क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री विच आई हैव एनालाइज्ड, ऑल क्वेश्चंस आर एट रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल, उससे ऊपर हम गए नहीं है। एप्लीकेशन पे तो जा सकते हैं डिप्लोमा लेवल पे, इफ नॉट गोइंग टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। थिंक ओवर, डोंट रिस्ट्रिक्ट इट टू द लोअर लेवल। अब राइट द यूनिट ऑफ दिस, ये ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क है, चलेगा चलेगा, चलो इसमें ज्यादा गलतियां नहीं है इस पेपर में, बट दिस इज व्हाट आई हैव लुक्ड इनटू। इसी तरह ये आपका पेपर है एनवायरमेंटल स्टडीज, है ना। अब देखिए इसमें भी वही गलतियां, राइट अ नोट ऑन एग्जैक्टली क्या चाहते हो भाई, बता दो ना, व्हाट डू यू मीन बाय, तो सीधा क्यों नहीं लिखते डिफाइन दिस और एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एयर पोल्यूशन, है ना। हाँ जी, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें पर्सनल पर्टिकुलर कमेंट्स करना हो, तो उस पे तो हम बोल सकते हैं वो स्टेटमेंट देके करिए, प्लीज कमेंट, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन बोलो, देन आई कैन करेक्ट, होता है। जैसे हमने कहा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ पर्टिकुलर, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे व्यूज अलग अलग हो सकते हैं। नहीं, आप व्यूज नहीं पूछ रहे हो यहाँ पे, आपने बोला है शॉर्ट नोट, मैं कहती हूँ मुझे डेफिनेशन आती है, मैं डेफिनेशन को लिखे जा रही हूँ, एक्सप्लेन करे जा रही हूँ, एग्जाम्पल दिए जा रही हूँ। एक बंदा है जिसको प्रोसेस का पता है, वो प्रोसेस लिखे जा रहा है, वही करे जा रहा है। आपने तो पूछा नहीं कि क्रिटिकली कमेंट ऑन दिस, उस केस में क्वेश्चन डिफरेंट होगा। अगर पर्सनल व्यू जानते हैं ना, है ना, देन एक्सप्लेन योर पर्सनल ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू दैट, है ना। आप जैसे कहते हो यूटिलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक्स, है ना, एक्सप्लेन योर व्यूज ऑन एक्सटेंसिव और मैसिव क्या होते हैं, डिफॉरेस्टेशन कह सकते हैं, या आप कह सकते हो मैसिव प्लांटेशन ऑफ ट्रीज इन दैट पर्टिकुलर रीजन, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ सोसाइटी पे, अपनी ओपिनियन बताओ, आप क्या फील करते हो, तब हो सकता है। बट नॉट ऑन ए टॉपिक, या इशू लो ना, कोई लेटेस्ट इशू, मे बी जैसे मैं कहती हूँ जो हम बात कर रहे थे यूक्रेन एंड रशिया वॉर, देयर कैन बी डिफरेंट ओपिनियन whether war should be there or not, whether Russia is right or Ukraine is right, whether USA role in right or wrong, personal opinion हो सकती है।
हाँ जी, नहीं, ये क्वेश्चन फ्रेमिंग पे डिपेंड करेगा कि आप किस चीज पे, अब ये इवैल्यूएशन पे है एक्चुअली। आप डिसीजन ले रहे हो कि वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, वेदर इट इज शुड बी देयर और शुड नॉट बी देयर। तो आप अपनी रीजनिंग दे रहे हो, यू एनालाइज एंड यू इवैल्यूएट। जी, गलत है ना। सीवी रमन के कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा है, सीवी रमन की पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा है, पर सीवी रमन की कंट्रीब्यूशन टू पूछा है फिजिक्स, क्या पूछ रहे हो? तो गलत हो गया क्वेश्चन। तो शॉर्ट नोट तो ऑलवेज अवॉइड। नहीं, शॉर्ट नोट नहीं लिखेंगे, फिर हम सीधा कहेंगे एक्सप्लेन एनी 3 सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ डॉक्टर सीवी रमन। व्हाई नॉट? शॉर्ट नोट बनाना ही नहीं है ना, वही तो बोल रही हूँ। तो बी स्पेसिफिक कि आप चाहते क्या हो, प्रोसेस चाहते हो, टाइप्स चाहते हो, कॉन्सेप्ट चाहते हो, एप्लीकेशंस चाहते हो, व्हाट इज इट दैट यू वांट स्टूडेंट्स टू। ऐसे में तो फिर आपने खुली छुट्टी दे दी ना कि उसमें जो जो आता है वो लिखो, दैट इज एक्सटेंडेड ऐसे टाइप क्वेश्चन। पर हम क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड ऐसे को आप कन्वर्ट कीजिए इन द रिस्ट्रिक्टेड ऐसे, सो दैट स्टूडेंट गेट्स द क्लू to organize the answer under different heads and your scoring becomes objective। अगर ऐसे, अब देखिए मैं कहती हूँ एक प्रोसेस है which passes through 5 different stages। अब वो करना है, explain the different 5 phases of the process or 5 phases in the process of this। अब ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है ना, बीच में क्या आना है वो उसने पूरा एक्सप्लेन करना। ऐसे में तो एक्चुअली व्यूज सब अलग ही हो सकता है। उसका फिर इवैल्यूएशन का हम किस तरह से, उसका आप क्राइटेरिया बनाओगे कि आपने कहा 5 फेजेस, मुझे 5 फेजेस हैं, मेरे 10 नंबर थे या 20 नंबर थे, फॉर ईच फेज आई कीप 4 मार्क्स फॉर ईच फेज, और 4 फेजेस को एक्सप्लेन करेक्टली किया तो द पर्सन गेट्स कंप्लीट। तो आप ही तो हो ना मार्किंग करने वाले, तो यू शुड हैव द क्राइटेरिया फॉर मार्किंग। हाँ जी, क्लियर है? एनीथिंग? ओके, तो आप ऐसे ये देखो इस क्वेश्चन पेपर में भी एनी अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। जब ये कॉमन इंस्ट्रक्शन है तो ऊपर क्यों नहीं दे देते? हर क्वेश्चन के आगे क्यों लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी 2, अटेम्प्ट एनी 2? ऊपर ही लिख दो, है ना। फॉर ईच क्वेश्चन देयर आर 3 पार्ट्स, attempt any 2 parts out of the given 3। ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 1 के आगे भी अटेम्प्ट, ये तो फिर रेपिटेशन हो गई ना, बार 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 बार। दिस इज अ जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑल क्वेश्चंस हैव 3 पार्ट्स, attempt any 2 parts, all questions carry equal marks। ये देखो, अब देखिए इसमें भी कितनी गलती है, हर कहीं कुछ मुझे मिला नहीं, राइट अ नोट ऑन, राइट अ नोट ऑन, पहला भी राइट अ नोट ऑन, दूसरे क्वेश्चन में भी राइट अ नोट ऑन। व्हाट कितना लिखा हुआ है, व्हाट इज सॉलिड वेट, व्हाट इज मेंट बाय, व्हाट इज डिटेल्ड, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन। वही कह रही हूँ कि टीचर का रोल, पेपर सेटर का रोल इज नॉट टू लीव टू द लर्नर बट pose specific questions related to the learning outcomes or the course outcomes if it is end term examination। Be specific कि आप competence कौन सी चेक करना चाह रहे हो, वो सोच के चलो। ability to analyze कर रहे हो, evaluate कर रहे हो, create कर रहे हो, applying कर रहे हो, क्या है, what is it that you really want the student to acquire that competence। तो AICT की साइट पे एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स पे एक छोटी सी रिपोर्ट है, आई वुड रिक्वेस्ट आप उसको पढ़िए, यू विल बी मोर क्लियरर ऑफ हाउ दे हैव डिवाइडेड द कॉम्पिटेंसी इनटू लेवल्स एंड देन दे हैव फ्रेम्ड द क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे आई कैन गो ऑन बिकॉज अगर आपके आए होते तो आई वुड हैव एनालाइज्ड। आई एम सॉरी आई डिडंट चेक द जंक मेल,
So I only looked at the inbox. Ji. Even the question number 1 doesn't has all the 10 options. It has all 3 options: discuss, explain, enjoy. आपका? Yes, ma'am. अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे पहले ही बोल देती हूँ, नेवर यूज डिस्कस. डिस्कशन किस में होती है? दो लोगों में या दो से ज्यादा में. एग्जामिनेशन हॉल में कहाँ डिस्कशन आप अलाउ करते हो? मैम एक क्वेश्चन अगर मेरी आ गई, कैन यू एक्सप्लेन? अरे कैन यू एक्सप्लेन नहीं, एक्सप्लेन द रीजंस. आंसर वुड बी यस और नो. तो मैं अगर नो लिखोगे तब भी नंबर दूंगी, यस लिखोगे तब भी. हो सकता है कोई बच्चा नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा तो उसको नंबर देने पड़ेंगे यस नो में. देखा अब व्हाट लिखा है तो कुछ भी होएगा ना. सो यू एग्री विथ? हाँ जी. नहीं, वो तो मैं आपसे पहले दिन भी मैंने ये कहा था, समवेयर वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग एंड वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज. देखिए पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, you used to get a better quality student. Now it is open to everybody. Whosoever intends to be in the polytechnic or the degree level institution can get an admission because number of seats are more than the number of demands for those. ठीक है? हाँ जी. हाँ नहीं चलो मैं कहती हूँ पॉपुलेशन बढ़ गई है, बट उसका मतलब ये नहीं है एनी टॉम जिक एंड हैरी कैन गेट इनटू दिस. वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं. अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी वैसे ही हो रहा है. आप अपॉर्चुनिटी दो, चलो आप ग्रेडिंग सिस्टम बनाओ, फिर ABCD. ठीक है, ABCD आपने बना दिया, ई ग्रेड कोई लेके जा रहा है, कोई B लेके जा रहा है, कोई C लेके जा रहा है. सो पीपल मूव आउट अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी. सो टीचर की हेडेक नहीं है कि उसको पास ही करके भेजना है. Whatever grade the student gets, he moves out of the system with that grade. Academic bank credit जो आप कह रहे हो, क्रेडिट अर्न करना मेरा पर्पस है, उसमें ग्रेडिंग आपकी क्या आ गई है वो सेकंड थिंग हो गई है ना. तो कुछ सिस्टम हमें मुझे लग रहा है जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पर्पस था, दैट हैज बीन डिफीटेड. वही तो कह रही हूँ ना मैं. अब तो ये हो गया कि भाई तुमने टीचर बनना है तो तुम्हें बच्चा भी रखना पड़ेगा, कहीं से लेके आओ. दिस इज वेयर आई थिंक वी हैव मेड अ कॉम्प्रोमाइज. मैं सिंपली इतना बोलूंगी, ऑल ऑफ यू आर मेच्योर इनफ टू इंटरप्रेट दिस. कहीं ना कहीं हर चीज में वो नीचे जा रहा है. नहीं, ये जो एटीट्यूड ऑफ इनडिफरेंस है ना, दैट हैज टू बी ब्रोकन. एज अ टीचर मुझे लग रहा है अगर आप भी याद करो, आज भी आप उसी टीचर को याद करोगे जिसने बहुत अच्छा पढ़ाया था, जिसने कुछ सिखाया था, डांटा भी था. वो नहीं जिसने कहा था जाओ भाई बच्चों खेलो बाहर एंड देन नंबर भी दे दिए. उस टीचर को हम नहीं याद करते. होता है द डिसिप्लिन टीचर जिसने काम भी करवाया, नंबर भी दे दिए. ठीक है, ठीक है. नहीं, आपको किसी को कोई मिस्टेक नहीं बतानी है. आई वुड से व्हेन यू सेट अ क्वेश्चन पेपर, प्लीज कीप दीज थिंग्स इन माइंड एंड आप अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन पेपर बनाइए. जैसे ही फर्स्ट ईयर से बच्चे को आप अच्छा क्वेश्चन पेपर दोगे, ही और शी ऑल्सो गेट्स इनटू अटेम्प्टिंग दोज क्वेश्चंस, है ना. ट्रेनिंग ही है ना एक तरह की. अब स्कूल के बच्चे को आप क्वेश्चन पेपर इतना अच्छा देते हो और डिप्लोमा में आके क्या उसकी 10वीं क्लास की पढ़ाई सारी जीरो थोड़ी हो जाती है 12वीं तक की. देयर आर मेनी गुड स्टूडेंट्स वर देयर इन द. ऐसा भी नहीं है कि सारे स्टूडेंट एक ही तरह के हैं, मिक्स है. मुझे लगता है किसी के साथ भी नहीं ऐसा. अ स्टूडेंट वुड एक्सपेक्ट अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच बाय द टीचर, है ना. इक्वल ट्रीटमेंट तो चाहेंगे ही चाहेंगे ना बच्चे, whether I am from the low socioeconomics or high socioeconomic.
मेरी जो परफॉर्मेंस है वो तो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए ना. मे बी अ स्टूडेंट, वेरी पुअर स्टूडेंट कैन बी अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट. होता है सोशल इकोनॉमिक की पढ़ना तो बहुत अच्छा, जो बच्चों ने जिनका फर्स्ट पढ़ाई में. हो गया वो बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो सिविल में आ गया तो ओनली थिंग इज समवेयर जो ये आप करते रहते हैं ना कि कोई बात नहीं जी, 9 बजे आ जाओ, 10 बजे आ जाओ, 11 बजे आ जाओ बस. तो ये एटीट्यूड बदलना पड़ेगा. प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन मींस डॉट एंड टाइम. चलो इसको छोड़ते हैं. ओनली थिंग इज डोंट क्रिटिसाइज. मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से, पेपर पब्लिश करो. उठाओ अपने 5 साल के पेपर पिछले, करो उनका कंटेंट एनालिसिस, बताओ उसमें क्या क्या गलतियां हैं और कहाँ इंप्रूव करने की जरूरत है. ये अगर टीचिंग प्रोफेशन में आए हैं, ये भी हमारी ही कंट्रीब्यूशन है ना. जो आप मेथड सीख रहे हैं, नहीं, अपनी क्लास को 5 टॉपिक एक मेथड से, 5 टॉपिक एक मेथड से पढ़ा के देखिए किसमें उसकी अचीवमेंट ज्यादा हो रही है. करो पब्लिश. यही तो है पेडागोजी रिसर्च. और आज इतनी वेटेज आप दे रहे हो इसको, तो करनी चाहिए एज ए टीचर. क्योंकि जो सिविल में एप्लीकेबल है वो शायद मैकेनिकल में नहीं होगा, जो मैकेनिकल में है वो कंप्यूटर में एप्लीकेबल नहीं होगा. डिफरेंट स्ट्रेटजीज वुड वर्क. different assessment procedures can be designed for different disciplines. नहीं कर सकते हैं ना. पर्पस वही है कि एज अ टीचर मेरा रोल क्या है वो मुझे जानना है. ठीक है, मैं अपनी तरफ से अच्छा करूं, सिस्टम विल इम्प्रूव. isn't it? So thank you very much. Any question from the people, faculty online? And इस क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन. हाँ जी. हाँ. क्वेश्चन नंबर 4 का जो सी पार्ट है, वही तो कह रही हूँ ना. अब देखिए, ये क्वेश्चन होना चाहिए था, एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. खत्म. ऐसे लिख करके हम नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, इसको क्वेश्चन को रीफ्रेम कीजिए. एक्सप्लेन द रोल एंड पर्पसेस ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ठीक है, 2 ही तो चीजें मांग रही हूँ. रोल क्या है और पर्पसेस क्या है. बताओ. अब रोल एंड पर्पस ओवरलैपिंग है वैसे. जो उसका पर्पस है वही तो रोल है. हो सकता है मैम मल्टीपल पर्पस हो, तो हम उसी हिसाब से बच्चे को लिबर्टी दे रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं नहीं, रोल एंड फंक्शंस मैं मान रही हूँ, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट राइट दी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है. एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शंस काफी होता है. ठीक है, इसको चेंज कर सकते हो. अब ये देखो, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, है ना. ग्रीन हाउस इफेक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, इको फ्रेंडली मटेरियल. ठीक है, अब 5 नंबर क्या है, 2 पार्ट करने. करना क्या है उसमें. नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को एक्सप्लेन करना, वो लिखा नहीं है उसने. यहाँ पे तो आना चाहिए था, एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग और इको फ्रेंडली मटेरियल. ऊपर ही एक्सप्लेन आना चाहिए था, है ना. ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी. सो डू इट एट योर लेवल. अपने लेवल पे आप जब एनालाइज करेंगे ना, 2-3 लोग मिलके फ्रॉम वन डिसिप्लिन can publish such kind of paper to improve upon the quality. Thank you very much for joining this session.